Hello students, how are you all? Today again we are back after so many vacations, and I am hoping that your Diwali was good, your Children's Day was good. We did a lot much efforts to make your Children's Day more healthy and more special. So I think so we did a great job and you liked our performances. So now Diwali break is over, all the festivals are over and we are coming back to our studies again. So yes, now we are recalling our chapter. So yes, I think so कि most of you forgot the name of, even the name of the chapter. So yes, remember? So I'm just recalling the name of the chapter, that is chapter 11, Moon and Artificial Satellite. This chapter is going on and many of the topics of this chapter is covered. So now our today's topic is tides. So don't worry students, I know that this chapter was going on in so many breaks because of the vacations coming back to back because of the so many festivals. So after completing the chapter, I am going to revise the complete chapter so that it will be easy to you to recall the chapter, to understand the concept in a one go. So don't worry at all. Today our chapter will be completed. So tomorrow we are doing oral or the book work of this chapter, and day after tomorrow on Thursday I am going to revise the chapter again. So don't worry and do the chapter, do the practice side by side with me. So yes, our today's topic is tides. So yes, what does the tide mean? Okay, the regular rising or falling of the level of the water in the sea or an ocean is called tides. Yes, basically tides क्या होता है? The rising and the falling of the sea level or the ocean water. पानी जो है सी में या जो ओशियन में है उसका राइज होना एक पर्टिकुलर टाइम पे और फॉल हो जाना अनदर टाइम पे, तो उस राइजिंग और फॉल को हम बोलते हैं, उस वजह से हमारे पास क्या होता है, टाइड्स बनते हैं. एंड टाइड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल जैसे हमारा अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वाटर सारा का सारा अर्थ के सरफेस पे है. But you know that moon is also having gravity and sun is also having some gravitational pull. But as the sun is far away from the earth and moon is very closer to the earth, so moon's gravitational pull can affect the seas and ocean water present on the earth. तो मून हमारे अर्थ के बिल्कुल पास रिवॉल्व करने की वजह से उसका ग्रेविटी होता है, हमने किया था 1/6 देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, लेकिन होता तो है ना, चाहे 1/6 कम होता है लेकिन होता तो है. तो उसकी ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ का पानी है जो सीज में या ओशियन में वो वेरिएशन शो करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है, तो उस वजह से टाइड्स बनते हैं. ठीक है. सो यस, बेसिकली होता क्या है, वी आर हैविंग दिस अर्थ, ये अर्थ है और यहाँ पर मून है जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, ये उसका रिवॉल्विंग पाथ है, वो रिवॉल्व करता ही रहेगा. तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होता है कि मून इज प्रेजेंट हियर एंड लेट्स द सी लेवल और ओशियन लेवल इज प्रेजेंट हियर. यहाँ पे सी और ओशियन लेवल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून विल अट्रैक्ट द सी वाटर और द ओशियन वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ. मून अपनी तरफ सी वाटर और ओशियन वाटर को अट्रैक्ट करेगा जो अर्थ पे प्रेजेंट है. तो उससे क्या होगा, इट विल फॉर्म द अपवर्ड पुल ऑफ द वाटर. पानी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, मून की तरफ अट्रैक्ट करेगा. एंड द सेम फिनोमिना विल हैपन एट द अपोजिट डायरेक्शन. इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पर सेम फिनोमिना होगा, यहाँ पर भी हाई टाइड बनेगी. तो बेसिकली दिस इज ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन एंड डी रीजन. तो ए और सी रीजन पे क्या होगा, हाई टाइड्स होगा because of the gravitational pull of the moon. But at the same time the gap between two high tides, low tide is present. B and D means low tides, जहां पर पानी का लेवल नीचे की तरफ होगा. Do you get that? Yes, earth is this, moon is this. Moon is also having gravitational pull. Because of the gravitational pull of the moon, it will attract the water of the sea and the ocean which is present in the earth towards itself. मून की तरफ वो अपनी तरफ पानी खींचेगा
because of that the water will move upward, वो ऊपर उठ जाएगा, and it will show high tides. The same phenomena will occur just opposite to the moon, though there also high tides will occur at the same time, and the gap present between the two high tides is the low tides, where the water level will not up to that height. तो ये एक फिनोमिना है, हमारे पास होता है. And every day, because of the rotation of the earth, because of the gravitational pull of the moon, the earth's sea and the ocean's water show high tides and low tides twice a day. एक दिन में 2 बार हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं. एंड जो हाई टाइड्स है उसकी जो हाइट है, ये जो मैंने हाइट बनाई है, ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, इट कैन बी वन डे इतना 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 ज्यादा और कम हो सकता है. सो यस, इट डिपेंड्स अपॉन द फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून हमने कल किया था, हमने पहले किया है. तो फेजेस ऑफ द मून की वजह से द हाइट ऑफ द हाई टाइड्स वेरीज. तो इट शोज मैक्सिमम हाइट ऑन द न्यू मून डे एंड फुल मून डे. फुल मून डे और न्यू मून डे पे जो हाई टाइड्स की हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है. एंड फिशरमैन शुड हैव द नॉलेज ऑफ दिस हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, कि व्हेन इन अ डे हाई टाइड विल अकर एंड व्हेन इन अ डे लो टाइड विल अकर. बिकॉज ऑफ दैट ही विल गेट टू नो कि अभी क्या करना है. और जो हमारे पास जो फिशिंग के लिए जाते हैं फिशरमैन, वो शोर पे, सी शोर पे आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई टाइड. लो टाइड पे पानी का लेवल इतना नीचे है, अगर वो अपनी बोट को ले आए तो वो कभी भी शोर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहां पे लैंड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी शिप को वहां पे पार्क ही नहीं करवा पाएंगे. तो यस, बेसिकली क्या होता है, हाई टाइड का उन्हें वेट करना होता है. इट अकर्स इन द मॉर्निंग टाइम और इन द इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम पे वो अपने बोट्स को शोर तक लेकर आते हैं, पानी का लेवल बहुत हाई हो चुका होता है और वो शोर पे चले जा सकते हैं. तो बेसिकली फिशरमैन शुड हैव दिस नॉलेज कि व्हेन इन अ डे हाई टाइड विल अकर एंड व्हेन इन अ डे लो टाइड विल अकर. तो इस तरह से वो उन्हें बहुत हेल्प करता है उन्हें अपनी फिशिंग करने के लिए. एंड हाई टाइड्स, एक तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग फॉर द फिशरमैन, एंड इट ऑल्सो, हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है. बहुत हाइट से जब हम पानी को गिराते हैं तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो हाई टाइड्स हेल्प्स इन द जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो यस, दिस इज अबाउट द टाइड्स. नाउ क्या होता है कि हमारे इंडिया से मून की तरफ बहुत सारे हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं, बहुत सारी चीजें भेजी है, सो दैट वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट द मून. सो इसमें सबसे पहला जो हमने एफर्ट्स किया था वो किया था इन द फॉर्म ऑफ चंद्रयान 1, जो 2008 में इंडिया का जो नेशनल स्पेस प्रोग्राम है या नेशनल स्पेस जो इंस्टीट्यूट है वो है इसरो. आपने शायद सुना हो, इसरो इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रेजेंट इन द आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है. आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा करके एक सिटी है, वहां पर हमारे ये इसरो करके जो हमारा नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट है वो प्रेजेंट है. ये बहुत सारे एफर्ट्स करता रहता है टुवर्ड्स डिफरेंट प्लैनेट्स, टुवर्ड्स डिफरेंट सैटेलाइट्स. तो वो काफी सारी चीजें करता है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो इसने वहां पर भी सैटेलाइट भेजे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ताकि वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट द मून. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप, द फर्स्ट स्टेप अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ द चंद्रयान 1 इन 2008, जो इसरो के साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजा था. So yes student, this is about the tides. Now I am showing one video to you to make it more clear ki what is tide. Ocean tides. The rise and fall of the level of water in the sea is called tides.
Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun. The moon is much closer to the earth than the sun. So, the force of attraction of the moon is stronger than that of the sun. The water in the seas on the sides of the earth facing the moon, A, gets attracted upwards and the sea level rises. This is known as high tides. Another high tide occurs on the opposite side of the earth, C, which is away from the moon. In areas between the two high tides, water forms low tides. At B and D, the water of the ocean is lowered because the water has moved to regions of high tide. So, these regions have low tides. Yes, students. Now our next topic is artificial satellite. Satellite, what are satellites? We have done in our previous topic also. So what are satellites? Satellites are the heavenly bodies that revolve around a planet. Like Earth is a planet and Earth is having one natural satellite, that is Moon. But except that, we, the human beings, also have sent many of the satellites in the revolution, in the orbital of the Earth, to get the informations, to get the different information. तो हमने जो सैटेलाइट मून के पास भेजी है, अर्थ के पास भेजी है, ताकि वो अर्थ के ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर सके, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देने के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट. ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है हमने इसे बनाया है, ठीक है. दैट हैज बीन पर्पसली प्लेस्ड, हमने इसको पर्पसली भेजा है अर्थ के पास. पर्पस है हमारे माइंड में कुछ ना कुछ, ठीक है. इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसके अंदर हमने इसको भेजा है, और अदर प्लैनेट्स. और ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में इसको भेजें. वी कैन सेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू द ऑर्बिट ऑफ एनी ऑफ द प्लैनेट. हम किसी भी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है. तो इस तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई गई थी, वो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1. स्पुतनिक 1 अ फेलो ट्रेवलर, जो इसका मीनिंग होता है स्पुतनिक का. और ये लॉन्च किया था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957. यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने इसको लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957, ठीक है. और इसके बाद इंडिया ने जो अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट वाज आर्यभट्ट, जिसको हम आर्यभट्ट भी बोलते हैं. तो इस आर्यभट्ट इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड जीरो. जो पूरी दुनिया को जीरो मिला है, इट इज बाय द आर्यभट्ट ओनली, ठीक है. तो यस, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट एक टी आएगा. तो यस, आर्यभट्ट इज अ साइंटिस्ट. तो आर्यभट्ट के नेम पे हमने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975. 19 अप्रैल 1975 को हमने ये लॉन्च किया था. उसके बाद हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजा है, लाइक इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज, कल्पना 1, एड्यूसेट, भास्करा, तो एक्सेट्रा. बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग अभी भेज चुके हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके, तो अभी हम करने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आई टोल्ड यू कि दे हैव बीन सेंट पर्पसली टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फंक्शंस. सो फर्स्ट वन इज द वेदर सैटेलाइट. वेदर सैटेलाइट आपने कभी भी सुना होगा, वेदर फोरकास्टिंग होती है ना. सो टू
एज्यूम दैट कि या हमें पहले से ही पता हो जाना, फोरकास्टिंग मतलब पहले से पता हो जाना कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस वर्ल्ड द फॉरेस्ट फायर कैन अकर, द रेन कैन अकर, द क्लाउड्स आर स्टॉर्म्स विल बी देयर, साइक्लोन्स विल बी देयर। तो इस तरह का जो पहले ही प्रिडिक्शन हो जाता है, दिस प्रिडिक्शन अकर बिकॉज ऑफ दिस वेदर सैटेलाइट्स। ये क्या करती हैं, ये पता लगाती हैं कि किस एरिया में क्या होने वाला है, वो सिग्नल्स हमें भेजती हैं, जिसकी वजह से हम अजम्पशंस करते हैं। 90 to 95% दीज अजम्पशंस आर करेक्ट, लेकिन कभी कभी वो इनकरेक्ट भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वेदर एकदम से चेंज हो गया, एकदम से कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, नेचुरल चेंजेस आ गए, तो कई बार ये गलत भी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर एक्यूरेट फोरकास्टिंग। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। Astronomical satellite. Astronomical means we are talking about the universe like galaxies, other planets. So we want, if we want the information regarding the astronomical objects, then we set the astronomical satellites. तो ये हमें गैलेक्सीज, मिल्की वे, इन सब का यूनिवर्स, ब्लैक होल, ये सब चीजों के बारे में हमें ये बताती है। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लाइक कि हमें कम्युनिकेशन करना है, लाइक टेक्स्ट, लाइक स्कैनिंग, लाइक ईमेल, लाइक इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब से अगर हमने कम्युनिकेशन करना है तो मोबाइल्स आर द वायरलेस सिस्टम, उसमें कोई वायर नहीं है, तो हाउ वी आर गेटिंग द सिग्नल, हाउ वी आर गेटिंग द कनेक्शन बिटवीन टू पीपल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अलग अलग रीजन ऑफ द वर्ल्ड में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगह में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स makes aware us like about the underground resources, the minerals, the ores, जो अंडरग्राउंड हमारे पास प्रेजेंट है, सब कुछ अर्थ में क्या क्या कहाँ पर है, कोल है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमें कैसे पता लग जाते हैं, हम कोई डिग तो नहीं करने बैठेंगे ना। तो यस, विदाउट डिगिंग द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ we get to know कि हाँ in this particular area we can get this particular mineral, this particular ore। तो इस तरह से जो information है वो हमें मिलती है by the help of this remote sensing satellites. Now next one is the military satellite. Military satellites are like spy of the country. तो ये हमारे एजेंट्स होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, जो हमें पता लगाते हैं अबाउट द डिफरेंट अबाउट द सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अबाउट द मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कि किसने हमारे सी शोर की तरफ अपना मिसाइल किया हुआ है, या फिर किसने कोई अटैक करने की सोच रहा है, या कोई किसी ने मिलिट्री पावर को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। लाइक जो अभी चीन ने, अगर आपने देखा होगा, चीन ने अपनी पूरी की पूरी सेना हमारे यहाँ पर नॉर्थ साइड में इकट्ठा कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो वहां पर हमें पहले से ही कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट। दैट एरिया वाज कम्प्लीटली एम्प्टी, वहां पे कोई हमारा सोल्जर या कोई भी लोग नहीं थे जब उसने वहां पर अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को रखा। तो वी गेट टू नो कि चीन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी गेट टू नो बाय दिस सैटेलाइट्स ओनली। तो हमें पहले ही पता लग गया कि वहां पर उसने अपना एक टुकड़ी इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पे वो मिसाइल लेने की सोच रहा है, यहाँ पे वो दूसरी कंट्री से कुछ इसने पावर स्टेशन या कुछ बम्स वगैरह या कुछ भी हेल्प ली है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है बाय द हेल्प ऑफ दिस मिलिट्री सैटेलाइट्स। नेक्स्ट वन इज नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन अब आपके मोबाइल में भी होता है। नेविगेशन मतलब डायरेक्शन। तो यस, डायरेक्शन के लिए भी हम सैटेलाइट यूज करते हैं। लास्ट वन इज द साइंस सैटेलाइट। तो यस, एनवायरनमेंट के बारे में पता लगाना, किसी नई चीज के बारे में पता लगाना, तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस सैटेलाइट। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। वन सैटेलाइट कांट डू ऑल द एक्टिविटीज, सो दैट्स व्हाई वी हैव सेट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो यस, हर कंट्री का अपना सैटेलाइट होता है। इंडिया ने बहुत सारे भेजे हुए हैं, अमेरिका ने बहुत सारे भेजे हुए हैं, चीन ने बहुत सारे भेजे हुए हैं। तो यस, अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पता हो, यस, वन टाइम सना वाज आस्किंग रिगार्डिंग मंगलयान।
तो यस, मंगलयान वॉज द मिशन टूवर्ड्स द मार्स. मार्स इज अ प्लैनेट. तो मार्स की तरफ हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो हमने भेजा था बहुत ही जल्दी. इट वॉज सेंट इन 5 नवंबर 2013. तो ये इसने बहुत लंबा टाइम लिया. इट कवर्स अबाउट 670 मिलियंस. इतना उसने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था इन अराउंड 300 डेज. तो हमने इसको लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 में और ये सेट हुआ था 24 सितंबर 2014 में. ये वहां जाके सेट हो गया था मार्स की ऑर्बिटल में. एंड इट वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द सैटेलाइट की जहां पर पहले ही अटेम्प्ट में किसी ने मार्स के ऑर्बिटल में अपना सैटेलाइट को सेट कर दिया था. एंड वी वर द फर्स्ट वन. तो वी आर द मोस्ट पावरफुल या मोस्ट स्पेसिफिक इन दिस. हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान मिशन को सक्सेसफुल बनाया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम मार्स के ऑर्बिटर में अपना सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वहां सेट कर पाए थे. Why we are setting satellite? Because we want the information regarding Mars, the environment, water is present or not, minerals are present or not, or so many information we want regarding the Mars. तो इसलिए हमने अपना सैटेलाइट वहां लॉन्च किया था. So yes student, this is about artificial satellite. Now our last topic remains, that is space travel. कि हमारे कितने साइंटिस्ट ने स्पेस में ट्रेवल किया है. So now move on towards the last topic. Yes, now last topic is space travels. So yes, we have number of scientists like Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams which are of Indian origin. ठीक है. तो yes, they have sent to the space. Space doesn't mean moon only. हम सिर्फ मून की ही बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है. The space which is present around the earth. अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक पर्टिकुलर एरिया तक है. उसके बाद एक पूरा वेकेंट स्पेस आता है जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो साइंटिस्ट आर सेंट टू दैट पर्टिकुलर रीजन टू एक्सपीरियंस द नो ग्रेविटी जोन, टू एक्सपीरियंस द नो एयर जोन एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. तो वहां पर साइंटिस्ट को भेजा जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई भी आप और हम चले गए, नहीं. उसके लिए साइंस की नॉलेज होना चाहिए एंड दे शुड हैव द नॉलेज टू correlate with the no space activity, no space area, no space means sorry, no air area और नो ग्रेविटी एरिया. जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, एयर नहीं है, उस एरिया में जाने से पहले उन्हें काफी टाइम तक एक ऐसा आर्टिफिशियल मेड जोन में रखा जाता है जहां पर इसी तरह का एटमॉस्फेयर होता है जो स्पेस में होता है, ताकि वो पता कर सके, अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर सके स्पेस में जाने से पहले कि हाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे. तो वहां पर क्या है, साइंटिस्ट ना कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज नो एयर इज देयर. तो वो एक स्पेशल स्पेस शटल में जाते हैं जो रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया जाता है एंड दे हैव टू वियर स्पेशल सूट्स, स्पेस शूट्स. तो यस, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया बना होता है, उनके एटमॉस्फेयर बना होता है उन्हीं के ही अंदर अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो सरवाइव करते हैं क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है. वो किसी चीज में हिल डुल नहीं सकते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के मूवमेंट करना पड़ता है क्योंकि नो एयर इज देयर. वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते. वहां पे उन्हें अपने हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके, एक दूसरे की केयर कर सके. सो मेनी एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म इन द स्पेस. सो दे शुड नो अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज. पहले तो क्या था कि हाँ, पहले साइंटिस्ट जो होते थे बहुत इंटेलिजेंट होते थे, उनको भेजा जाता था. बट नाउ डेज स्पेस में उन लोगों को भेजा जाता है जिनको कंप्यूटर्स का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, अच्छे साइंटिस्ट हैं और जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. तो आजकल थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया है. सो दिस इज अबाउट द स्पेस ट्रेवल. अगर बड़े होके आपने कुछ अच्छा किया, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन द स्पेस, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो मेहनत करो, अच्छे से कोशिश करो एंड वन डे यू कैन ऑल्सो बी अ साइंटिस्ट. लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. एंड आई वॉन्ट कि भाई मैं या फिर बाद में हम लोग आपका भी नाम ले. आई कैन ऑल्सो से दैट कि यस, ही और शी इज माई स्टूडेंट जो भी स्पेस में है. So yes, you can do, nothing is impossible. So this is about this today's lecture and this is about this chapter
So now our chapter 11, Moon and Artificial Satellite, is over, and tomorrow we are going to do the bookwork of this chapter. So yes, this is all about for today's video. Thank you.